فرمائے اللہ تبارک و تعالی شاعر ہندوستان جناب اختر پروان نعیمی کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی تیزی کے ساتھ پورا مجمع پھر استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, پورا مجمع استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. ابھی بھی کچھ لوگ کے ہاتھ اٹھے ہیں, کچھ لوگ کے نہیں اٹھے ہیں. جن کے نہیں اٹھے ان کے ہاتھ سے بچ کے رہیے گا, ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی کے جیب میں ہو. پورا مجمع دیانتداری کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شاعر ہندوستان جناب اختر پروان نعیمی. کیا بات یہ درسوت پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء اہل سنت قبلہ سامنے کرام پردے میں بیٹھے ہوئے ماں اور بہنوں عزیز دوستوں سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شر شام سے لے کر اب تک علماء کرام سے سورہ اسلام سے نبی کی نعتیں نبی کی باتیں سن رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ سب کی کہی ہوئی بات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے مولا یہاں پہ جتنے عاشق رسول آئے ہوئے ہیں مولا, جن لوگوں نے چندے میں حصہ لیا مولا, ان تمامی لوگوں کے گھر میں خوب برکتیں عطا. الحمدللہ ممبر رسول پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں. آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. اور میں کل قیامت کے دن اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے عادت کے مطابق کلام اعلیٰ حضرت کے چند شعر آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اس سے پہلے بارگاہ نبی میں بلند آواز سے سب لوگ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ, صلی علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ تعالی صلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پیشتر استاذ محترم الحمدللہ حضرت علامہ مولانا ابوالقاسم صاحب سے آپ نے عمدہ گفتگو بھی سماعت کی ہے. الحمدللہ بہت بہترین چندہ بھی مسجد کے لیے ہو گیا. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا. آمین آمین. تمام تر علماء تشریف فرما ہے, آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. اب جو سنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جاتا ہے اس ہاتھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں آتی ہے, وہی لوگ دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور لہرا کر کہیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ. بہت ہی مشہور زمانہ کلام جس کو میں پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتا ہوں, آپ بھی سنیں اور اپنے ایمان کو گرمائیے. ملاحظہ فرما لیں کہ اللہم صلی علی. دل لگائیے, انشاءاللہ آج آپ اپنی بستی میں نہیں مدینہ شریف پہنچ جائیے. میرے سنت معصوم ظہور صاحب بہت عمدہ ندامت ماشاءاللہ سلامت رکھے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نے اب جو سنی ٹناٹن سنی ہے, اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا لے اور کہتے یا رسول اللہ لم یات نظرک فی نظر, لم یات نظرک فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا. بس آپ لوگ دل کھول کے سنیں, انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. کہ لم یات نظرک فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا, مثل تو نشد پیدا جانا. کہ جگہ راج کو تاجی تورے سر سو, کیا بات ہے, آپ لوگ کدھر کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے تھے اختر بھائی, آپ اتنا کھینچے کہ آپ مر جائیے, کل آپ کا عرس منائیں گے تب سبحان اللہ کہیں گے. اگر یہ ارادہ لے کے بیٹھے ہیں تو قسم خدا کی اگر میں
नबी की नात पढ़ते पढ़ते मर गया, इंशाअल्लाह मैं जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपने इस रस्सी को पकड़ लिए तो आपका जिस्म यही रहेगा, लेकिन दिल मदीना शरीफ पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए दिल लगाइए, है ना। मेरे भाई बेस कम कर दीजिए, है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा बज रहा है। बुलाया था फरमा ले कि लम्यात नज़रों का फे नजर, लम्यात नज़रों का फे नजर, मिसले तो न शुद पैदा जाना के जगे राज को ताजी तुझे सर सुनो के जगे राज को ताजी तुझे सर सु, जगे राज को ताजी तुझे सर सु, है तुझको शहर तो से राजा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद ने। अब जो सुन्नी ये अकीदा रखते हैं कि इस महफिल में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, वही दोनों हाथ उठाए और बुलंद आवाज से बोले सरकार की आमद। माशाअल्लाह सुन्नी अंदाज में बोले सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरसों से बोलो यासीन की आमद, ताहा की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मरहबा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद ने। मिसले कुनाशुद पैदा जाना। इस कलाम को समझने के लिए आपको मदरसे में जाकर 12 साल दाल चावल खाने पड़ेंगे, फिर समझ पाएंगे कि आला हजरत नबी के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन एक कलाम ऐसे भी आला हजरत लिखे हैं जो नबी की बराबरी का दावा करता है, वो सुन्नी सुन ले, है ना, और उनको बता दे कि जो बराबरी का दावा करता है चाहे कितना ही पढ़े लिखा क्यों ना हो, वो उम्र भर ये बात कहता रहता है। क्या? अरे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, के अपने मौला का प्यारा के अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद ने। अब एक शेर सुन लीजिए और इस शेर को आप याद कर लीजिए, हो सके तो कभी भी मुसीबत में फंसे तो इस शेर को पढ़िए, इंशाअल्लाह मुसीबतें दूर हो जाएगी, है ना। क्योंकि शेर ही ऐसा है, मुलाहिदा फरमा रहे कि अल बहरो अला वल मौजो तगा, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तो फाहोश रुबा, मन बेकसो तो फाहोश रुबा, के मची धार में हो बिगड़ी है हवा, अरे मची धार में हो बिगड़ी है हवा, मची धार में हो बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह मोरी नैया पार लगाया। सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद ने। सरकार की आमद, नींद
को दूर भगा, इसलिए मैं ना लगवा रहा हूँ, ये कहलवा रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा अकीदा है कि नबी हमें देख रहे हैं, है ना। जो घुटने पकड़े हुए घुटने छोड़े और हाथों को झंडा बोले और बुलंद आवाज से बोले सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरसों से बोलो यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वो मौलाना मुहम्मद ने। आखिरी शेर सुन लीजिए और बहुत प्यारा शेर, और जो इस शेर पे अकीदा रखे ना रखे, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, मुफ्ती शाहजहां साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। जो इस शेर पे अकीदा ना रखे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, है ना। दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि शेर ही ऐसा आला हज़रत लिखे हैं। क्या है सुने, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। के खमसा तो को रज़ा के खमसा तो को रज़ा मेरे सच्चे रज़ा, मेरे अच्छे रज़ा, मेरे मीठे रज़ा, मेरे प्यारे रज़ा, खमसतों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, खमसतों को रज़ा मुझदा दीजिए के है। क्या अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वो मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वो मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या नबी अल्लाह। देखिए मेरे भाई जो भी खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप नबी के जलसे में आए हैं, यहाँ अदब से बैठना भी, इस कलाम को आप दिल खोल के सुन लें, इंशाल्लाह आप भी मुझे दुआ देंगे और मैं आपको दुआ दूंगा, है ना। एक सुन्नी क्या कहता है, एक टनाटन सुन्नी क्या कहता है, सुन ले कि आला हजरत का शैता हो, मेरे भाई थोड़ी सी आवाज को साफ कर दीजिए, आला हजरत का शैता हो, आला हजरत पे मरता हो, थोड़ी सी को और दे दे, अरे आला हजरत पे मरता हो, आला हजरत पे मरता हो। औरतें ना आए नाम लेने के लिए, आप किसी के हाथों भेज दीजिए। अब चाहूंगा वो वक्त का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नजर में उनकी अहमियत हुआ करती है जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। मासूम भाई आप भी तैयार हो जाइए और मतला सुन लीजिए। अरे मेरी नजर में उसका बड़ा एहतराम है, बस अगर आप जनातन सुननी है तो जनातन आवाज में इसको सुन लीजिएगा। अरे मेरी नजर में उसका बड़ा एहतराम है, अरे मेरी नजर में उसका बड़ा एहतराम है, मेरी नजर में उसका बड़ा एहतराम है, मेरी नजर में उसका बड़ा एहतराम है। अरे जो भी बड़े दीवाने रज़ा का गुलाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने सरकारे आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत का आला हजरत पे मरता हो। शेर बहुत है लेकिन ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमा ले, और बहुत प्यारा शेर, उलमा कराम के कदम को चूमते हुए मुलाहिज़ा फरमाए। अरे देखा रज़ा का इल्म तो कहने लगे सभी, अरे सिर्फ हमें नहीं सब लोग
जो पढ़े लिखे हैं वही लोग कहते हैं अरे देखा रजा का इल्म तो कहने लगे सभी, अरे देखा रजा का इल्म तो कहने लगे सभी, देखा रजा का इल्म तो कहने लगे सभी, देखा रजा का इल्म तो कहने लगे सभी। क्या अरे सब हजरतों में आपका आला मकाम है, का शैदा हो, आला हजरत पे मरता हो, आला हजरत का शैदा हो, आला हजरत पे मरता हो। अभी अल्लामा कासिम साहब किबला कुरान के हवाले से बहुत उम्दा पैगाम दे रहे थे। अच्छा कौन है जो कुरान की अजमत को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे? वो हाथ उठाकर बताए। जान देंगे? कितने लोग जान देंगे? थोड़ा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मतलब बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। जान देंगे? चाकू मंगाए? कटा देंगे गर्दन? अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन आपको गर्दन कटाना नहीं है, बस इस शेर पे आप अमल कर ले और एक जिसको नारा हो वो नारा लगाकर उस हरामखोर को बता दे जो कुरान को मिटाने की बात करता है, कुरान की आयतों को मिटाने की बात करता है। उनको बता दे कि हम मुसलमान हैं, जब तक जिंदा है ना, आयत तो दूर की बात, एक जबर शेर होने नहीं दूंगा, है ना। एक शेर सुन लीजिए और आप तरफ जाइए। अरे कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे, ये सुन्नी लोग मुसलमान लोग सुन लीजिए और ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए। अरे कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे, कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे, अरे कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे, कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे, कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे। कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, ये शेर सुनने के काबिल है और इस पे अमल करने के काबिल है, इसलिए मेरी तरफ देखें। अरे कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे, कुरान की आयतों को बदलना जो चाहेंगे, अरे लखनऊ के चौकी पर उन्हें जिंदा जलाएंगे। क्या बात है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए आवाज़ भाई, आपको ये लोग समझने के वही नारा आएंगे, हम लोग नारा नहीं लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है। मदद से लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते आला हज़रत, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, शाने कुरान, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, शायरी आज़म हिंदुस्तान हज़रत अख्तर परवाज़ नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराफत के वसूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी है मगर मेरे कुरान की यही खूबी है, अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। तो इस शेर को फिर जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शेर को दोबारा पढ़ दे, पढ़ दे। अरे कुरान की आयतों को मिटाना जो चाहेंगे, अरे कुरान की आयतों को मिटाना जो चाहेंगे, कुरान की आयतों को मिटाना जो चाहेंगे, अरे लखनऊ के चौक पर उन्हें जिंदा जलाएंगे। आला हजरत का शैदा हो, आला हजरत पे मरता हो, आला हजरत का शैदा हो, आला हजरत पे मरता हो। पूरा मलमा बोले बस्ती बस्ती करिया करिया, से इल्म का दरिया, अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह उलमा भी दुआ देंगे और आप भी दुआ देंगे। बिल्कुल हकीकत और सच्चा शेर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलाम ताजुल शरिया हूँ, वो उम्र भर ये बात कहते रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा ये कहता रहूंगा। क्या कि अख्तर हजार ढूंढ लो ऐसा न पाओगे, अरे
اختر اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. اگر واقعی میں آپ تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں اور سچ بات کو سن کر بولنا جانتے ہیں تو بولیے گا ضرور. ارے اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. ارے اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. ارے تاج الشریعہ دہر میں تو جان پاؤ گے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر ہندوستان جناب اختر پروازؔ نعیمی. نعرہ بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. کون بنا مہمان کعبہ، کون بنا مہمان کعبہ. ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ سرزمین پرسندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. اختر ہزار ڈھونڈ لو ایسا نہ پاؤ گے. ارے تاج الشریعہ دہر میں تو جان پاؤ گے. اعلیٰ حضرت کا شیدا ہو، اعلیٰ حضرت پہ مرتا ہو. اعلیٰ حضرت کا شیدا ہو، اعلیٰ حضرت پہ مرتا ہو. اعلیٰ حضرت کا شیدا ہو، اعلیٰ حضرت پہ مرتا ہو. ماشاءاللہ ہمارے بھائی صاحب کی فرمائش ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا. پڑھتے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوچھ پاچھ کے کرنا ضرور. ارے زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ میں اگر کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیں ایک کلام کی فرمائش ہے کمیٹی والوں میں سے ہمارے کیا نام ہے گڈو بھائی نے کون ہے وہ بڑی محبتوں سے ہمیں یہ کلام پڑھنے کو کہا کہ اس کلام کو آپ ضرور پڑھیے گا تاکہ لوگوں کو پہچان میں آ جائے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آواز کہاں کی ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکا پاکستان کا ہے. پاکستان کا نہیں، الحمدللہ انڈیا کا ہوں، بھارت کا ہوں اور آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. میں اس کلام کو پڑھتا ہوں جو آپ موبائلوں میں انٹرنیٹ میں سنتے رہتے ہیں. اسی کلام کی الحمدللہ بدولت آج لوگ مجھے اختر پروازؔ نعیمی کے نام سے لوگ جانتے ہیں. تو میں اس کو پڑھ دوں. تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں انشاءاللہ. جو لوگ نبی کے نام سنتے ہیں ہمیشہ موبائل میں کلام رکھتے ہیں تو وہ کلام ضرور ہوگا، وہ سن چکے ہوں گے اس کلام کو. اگر ایسے نہیں سنے تو رمضان شریف میں تو ضرور مسجد کے میناروں سے آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا. ملاحظہ فرما لیں کہ ارے دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے. ارے دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے. کہ ماں ایسی ہستی ہے جس کے ہستی ہے جس کے ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے. دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے. دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے. اب یہ بات سن لیں، وہ
भाई सुन ले जो बीवी के चक्कर में आकर, दौलत के चक्कर में आकर माँ बाप को गाली देते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। वो सुन ले मेरा भाई, आप गलत कर रहे हैं। कसम खुदा की जब आप बचपने को याद करेंगे तो आप कसम खुदा की समझ जाएंगे कि मेरे माँ बाप मुझे किस तरह पाले होंगे, या ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो जिस दिन आप बाप बनेंगे फिर समझ पा जाएंगे कि मेरे माँ बाप क्या थे। मुलाहिदा फरमाने, अरे घर वाले सब सो जाते हैं, अरे घर वाले सब सो जाते हैं, लेकिन अरे जागती माँ रह जाती है। अरे घर वाले सब सो जाते हैं, जागती माँ रह जाती है। क्यों? अरे बच्चे के आराम की खातिर, बच्चे के आराम की खातिर हर दुख को सह जाती है। अरे बच्चे के आराम की खातिर हर दुख को सह जाती है। अरे माँ के आंचल के साए में, अरे माँ के आंचल के साए में, इनके आंचल के साए में चैन सुकून है, राहत है। अरे माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। और ये भी उन भाइयों से बात कर रहा हूँ जो वाकई में दोनों जहां में तरक्की करना चाहते हैं, तो दोनों जहां में कामयाब होना चाहते हैं, वही दोनों हाथ उठाए और कहे सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए, आज मासूम भाई अल्लामा कासिम साहब, मौलाना शाहजहां साहब, जितने हैं अली हजरत मौलाना अली बख्श साहब, जितने उलमा यहाँ चमक रहे हैं, हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत फरमा रहे हैं। ये चमक रहे हैं, क्यों चमक रहे हैं? एक नुस्खा पे अमल करते हैं ये, है ना। वो नुस्खा क्या है आप भी ले जाइए, इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब हो जाएंगे। मुलाहिदा फरमा ले, वो नुस्खा सुने। अरे माँ की दुआएं लेकर जब मैं, अरे माँ की दुआएं लेकर जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, अरे माँ की दुआएं लेकर जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जन्नत, ऐसा लगता है कि जन्नत के वादी में टहलता हूँ। अरे ऐसा लगता है कि जन्नत। हेलो, सही करो उसको। बॉक्स आवाज पड़ेगी माशाल्लाह, आप सोते हो क्या? बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ देखो, जो बॉक्स कुछ गड़बड़ कर रहा है उसको बंद कर दीजिए। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा ले और कह दे या रसूल अल्लाह। अरे माँ की दुआएं लेकर जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जन्नत, ऐसा लगता है कि जन्नत के वादी में टहलता हूँ। अरे ऐसा लगता है कि जन्नत के वादी में टहलता हूँ। अरे माँ की दुआ के सदके मेरे, अरे माँ के दुआ के सदके में, हाजी इनके दुआ के सदके में हर सुजहां में शोहरत है। अरे माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। आखिरी बंद दो के साथ मुलाहिदा फरमाए। वो बेटा वाकई में इस शेर पे क्या बात हक है, हिल जाएंगे, तड़प जाएंगे कि वाकई जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं उन पे क्या गुजरता है जब उनके वालिदैन का इंतकाल हो जाए। एक शेर सुन लीजिए और अपने दिल पे एहसास कीजिए कि अख्तर परवाज़ क्या कह रहा है। मुलाहिदा फरमा ले कि उसके दिल से जाकर पूछो, अरे उसके दिल से जाकर पूछो जिसकी माँ मर जाती है। अरे उसके दिल से
जा कर पूछो जिसकी माँ मर जाती है। अरे मन का आंगन दिल की दुनिया, मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर जाती है। अरे मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर जाती है। आखिर क्यों? अरे माँ ही घर की रौनक है। अरे माँ ही घर की रौनक है। आज माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। अरे माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। दुआ के साथ मुलाहिदा फरमा लें। और मैं बचपन से ये कलाम पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप तरफ जाएंगे। दुआ के साथ मुलाहिदा फरमा लें। ये कलाम मैं उस वक्त पढ़ा हूँ, अल्लामा कासिम साहब किबला जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उस्ताद हैं। मैं हजरत के पास पढ़ा हूँ आज से 13-14 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की देन है कि उंगली पकड़ कर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने साथ लिया करते थे जलसों में। और हजरत जानते हैं कि जब मैं ये कलाम पढ़ता था ठाकुर जी तो ये कलाम में जब पढ़ा था तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि एक मारवाड़ी भी रोता हुआ स्टेज के पास आकर मचल रहा था, है ना। ये वो कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआएं हैं आप लोगों की। मक्ता सुन लीजिए कि प्यारे बच्चों तुम भी समझो, अरे अच्छे बच्चों तुम भी समझो, माँ की दिल से कदर करो। अरे प्यारे बच्चों तुम भी समझो, माँ की दिल से कदर करो। क्यों? अरे माँ की खिदमत फर्ज है तुम पर, माँ की खिदमत फर्ज है तुम पर, माँ को कभी तकलीफ न दो। अरे माँ की खिदमत फर्ज है तुम पर, माँ को कभी तकलीफ न दो। कि शबनम तुम भी समझो माँ की, शबनम तुम भी समझो माँ की। अरे लोगों तुम भी समझो माँ की, जात सरापा रहमत है। अरे माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ। अल्लाह ताला इस कलाम पे हम तमामी लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कसम खुदा की अगर इस कलाम में एक बंदा भी सुधर जाए तो ये इस्लाह मुआशरा करना कामयाब हो जाएगा, है ना। क्योंकि मेरा वक्त शायद आ गया है, मैं अपनी जगह पे लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक नाम लेना चाहता हूँ जिस नाम को सुनने के बाद मुसीबतें दूर हो जाती हैं। पर्दे मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। तैयार है आप लोग? तैयार है? जितने लोग तैयार है वही कहें या गौसे आज़म। माशाअल्लाह सुन्नी जब गौसे पाक का नाम लेता है तो वो अपनी किस्मत पे इतराता है। क्यों? क्योंकि गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नाम जमीन पर वही बंदा ले पाता है जिससे मैं राजी रहता हूँ, यानी जिससे मैं चाहूँ वही नाम ले पाता है। तो सुन्नी क्यों ना किस्मत पे इतराए कि गौसे पाक हमसे राजी है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर कहे या गौसे आज़म। तो मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, सुन लीजिए कि बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर बेनज़ीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर। कौन बड़े पीर? अरे बचपन में गौसे पाक ने ऐसा बना दिया। बस जाते जाते आप इस कलाम को सुन लें और अपने दिल पे बसा लें। अरे बचपन में गौसे पाक ने ऐसा बना दिया, बचपन में गौसे पाक ने ऐसा बना दिया।
दस्तगीर। शेर सुन ले मासूम भाई, कल कोई इन लोगों के पूछ सकता है कि आप गौसे पाक का नाम क्यों ले रहे थे। ए मेरे सुनिए भाई, मेरी तरफ देखें, कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो हमारे भाई को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्यों जाता है अजमेर शरीफ, क्यों गौसे पाक का नाम लेता है, क्या गौसे पाक ने दिया क्या है। तो उनको जवाब दे दीजिएगा और कहना क्या है, अख्तर परवाज बताने जा रहा है। मुलाहिजा फरमाए, अगर इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए तभी बोलिएगा। दुआ के साथ मुलाहिजा फरमाए, अरे क्या क्या बताओ गौसे ने क्या क्या बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है और ये अकीदा रखते हैं। अरे क्या क्या बताओ गौसे ने क्या क्या बना दिया। अरे क्या क्या बताओ गौसे ने क्या क्या बना दिया। क्या क्या बताओ गौसे ने क्या क्या बना दिया। क्या क्या बताओ गौसे ने क्या क्या बना दिया। अरे जिस पर नजर पड़ी उसे आला बना दिया। बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर बेनज़ीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर। शेर बहुत है, आखिरी शेर सुने, और बहुत प्यारा शेर। अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी की बराबरी करता है उनसे बता दीजिए कि जब मेरे गौस का ये मर्तबा है तो मेरे नबी का क्या मर्तबा होगा। सुने, अरे मशहूर है बहुत ये करामत जहान में। बस यही आवाज है भाई, करामत गौसे पाक बयान करने जा रहा हूँ। और हम सुन्नियों का अकीदा है कि अगर गौसे पाक हम पर नजर करम फरमा दें तो कसम खुदा की सिर्फ यही बेड़ा पार नहीं होगा, मरने के बाद भी बेड़ा पार हो जाएगा। वो है हमारे गौस, है ना। दुआ के साथ मुलाहिजा फरमा, और जब मुसीबत में फंसे या ना फंसे गौसे पाक का नाम लिया करें। सफर में हो, घर में हो, गौसे पाक का नाम लिया करें। इंशाल्लाह मुसीबत आपके करीब तो दूर की बात हजारों कोस दूर रहा करेगी, है ना। दुआ के साथ मुलाहिजा फरमाए, अरे मशहूर है बहुत ये करामत जहान में। आखिरी शेर पढ़ लो, बस सुन्नी अंदाज में टनाटन आवाज में बोल दीजिएगा। अरे मशहूर है बहुत ये करामत जहान में। अरे मशहूर है बहुत ये करामत जहान में। मशहूर है बहुत ये करामत जहान में। क्या अरे लड़की को मेरे गौस ने लड़का बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म। कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, किरदारो अमल के रंग में गाजी बन गए। डाकुओं पे जब पड़ी गौसे आज़म की नजर, गुंडा गर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। एक शेर और मैं पढ़ देना चाहता हूँ माहौल के हिसाब से। पढ़ दे, पूरा मजमा बोले ख्वाजा का हिंदुस्तान, लोग बोले जिंदाबाद, क्योंकि हमसे कागज मांगता है, पता नहीं क्या क्या मांगता है। उनको बता दीजिए कि हमसे मत मांगो कागज, चले जाओ अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ वाले के पास हम तमामी लोगों का कागज जमा है ना, क्योंकि हम उन्हीं का सदका खाकर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, है ना। अगर वाकई में आप उनके सदका खाने वाले हैं तो इस नारे को बुलंद आवाज से बोलिए, और पूरा मजमा कोई भी हाथ नीचे ना करे, नींद को दूर भगाए और बुलंद आवाज से जिंदाबाद बोले, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुन लीजिए दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमाए, अरे सरदार औलिया ने फकत एक निगाह से, अरे सरदार औलिया ने फकत